Hi. Hi. Is my voice fine? आवाज आ रही है क्या? Great, great, great. Hello. Hello, hi. Okay, hi Gaurya. I am really so happy to have so many people here. Okay, hello everyone. Good evening, a very good evening to all of you. So I am Ridula from Team Impressions and I welcome you all to another exciting episode of Artistine series. So if you are wondering why I have a Mickey Mouse and something like a Simba behind me, then let me wish you all a very happy International Cartoons Day. So Walt Disney once said that laughter is timeless, imagination has no age, and dreams are forever. And yes, cartoons do give us a magical world full of these thoughts and happiness. So today we have a person working in the same background, and I'm sure that all of you have heard her voice on the famous shows like Doraemon and Shinchan. I am very glad to welcome Pallavi Bharti today with us. She will be joining us soon. So Pallavi ma'am is here. So let me add her to this live video. Hello ma'am. Ma'am will be joining us here soon. I am really very excited for this conversation and I'm personally cartoons are very near my heart. So hello ma'am. Hi, Hi. can you Happy hear me? International Cartoons Day. Yeah.
Same to you. Same to you. Happy International Cartoons Day to everybody who's joined. How are you? I am doing great. This Happy quarantine time, what? it has given so much time to sit and relax and learn new things. I'm enjoying it. Good, good. Same. Same here. In fact, I was telling in one of my interviews that I've learned baking and we're doing so many things. A lot of gardening we are doing. So it's fun to be with family. I know थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है बट Yeah, ठीक है अब क्या करें कुछ it's करना fine. I love It's what you have behind you. I love yeah, them. these I have literally 20 to 30 of these. These are so close to my heart. Wow. I love soft toys. Good. So You like pick one yourself. yeah, like बचपन से I have had them with me, so I never let them go. Like room Good, में good होते हैं thing. हमेशा. You're a keeper. You're a keeper. I'm so proud of you. I'm not. Yeah. So we are actually very, very happy to have you here with Impressions. Thank you so much, ma'am, for being Thank here. you. Lots of love Yeah. to everybody. Lots of love to Sakshi and you and everybody who's been trying to teach me how to go live and everything because I'm really bad with all this. But ma'am, I mean, we have heard your voice in Doraemon and Shinchan, and it's amazing how, I mean, you enact so many different voices. It's really, really amazing. Thank you so much. Thank you. So, like, did you have this idea of becoming a voice artist from childhood, or like you had this idea after starting, like you had some exposure to it? So I'll tell you what, my father is a writer. So he used to write for Doordarshan and other like All India Radio and everything. So I was 2.5 years old when I got my first TV break. Okay. So I did an ad film with Virendra Saxena. So I got introduced to this field बहुत पहले. I was a little हाँ, kid. और छोटे पे लोग कहते हैं कि अभी भी मेरी शक्ल ना वैसी दिखती है जैसे छोटे पे होती थी so छोटे पे I got exposed to so many to TV medium and to film medium तो छोटे पे ये ख्याल नहीं था मेरे घर में पढ़ाई yeah, को और पढ़ने लिखने को बहुत जोर दिया जाता है उस पर so when I was 4 I got approved as a child artist in All India Radio तो ड्रामा टीवी में भी और ऑडियो में भी तो ऑडियो करते करते मुझे छोटे बचपन से जब मैं देखती थी मेरे सीनियर्स को परफॉर्म करते हुए मुझे लगता था हाँ, कैसे सिर्फ आवाज से इमोट कर देते हैं क्योंकि सुनने वाला सिर्फ आपको yeah, देख नहीं पा रहा आपको सुन पा रहा है तो अगर आप रो रहे हैं आप हंस रहे हैं तो कैसे लोगों को समझ आ जाता है सो दैट यूज्ड टू रियली रियली फैसिनेट मी अब टीवी का क्या है लोग एक्टर्स को ज्यादा देखते हैं तो उनको लगता है अरे आजकल yes, हमारे इंडिया में खास तौर पर बड़ा क्रेज है सेलिब्रिटी फेसेस एंड हाँ, एवरीथिंग पर right, वो भूल जाते हैं कि उनके पीछे भी वॉइस एक्टर्स का कितना बड़ा हाथ है आप देखिए बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं बड़े बड़े एक्टर्स हैं कई बार उनको वक्त नहीं होता है तो वो खुद डब नहीं कर पाते उनके पीछे वॉइस एक्टर्स होते हैं पर उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिलता है सो दैट यूज टू रियली रियली फैसिनेट मी तो बचपन से आई स्टार्टेड फिर मेरा धीरे धीरे टीवी फिल्में बहुत की मैंने फिर धीरे धीरे मेरा वॉइस की तरफ रुझान बढ़ता गया और मुझे लगा दिस इज डिफिकल्ट आप टीवी पे एक आंसू गिरा के आप बता सकते हैं कि आप रो रहे हैं बट दिस इज डिफिकल्ट आप yeah, वॉइस पे कैसे बताओगे सो दैट definitely, yes. या Like it is really lovely. So, did you like mimic different people around you from your childhood? हाँ एक्चुअली मैं ना मेरे फैमिली की नौटंकी हूँ सो तो जैसे कोई जैसे हमारे घर जो हमारी हेल्प है उनका बहुत हाँ, ही एक बड़ा डिस्टिंक्ट सा तरीका है बोलने का तो बोलते आंटी मैं जा रही हूँ तो मैंने कर दिया तो मैं जा रही हूँ तो ऐसे हर चीज को ना पीछे से एक टेल छोड़ते मैंने कर दिया मैं चाय पीने जा रही हूँ आपको चाहिए क्या ऐसा तो आई रियली मिमिक हर और छोटे पे भी मैं आई टू सिंग डांस एंड डू ऑल दैट तो मेरे ख्याल से बचपन में मेरे रंग ढंग देखकर मेरे माता पिता को लगा होगा कि इसको इसी फील्ड में जाने दो आगे जाके बहुत बड़ी वॉइस आर्टिस्ट हाँ ऐसा सोचा नहीं होगा पर चलो मैंने उनकी बात बनी. Yeah, true. I mean, it's really lovely. We have heard your voice everywhere, and actually screen के ऊपर ना पता नहीं होता. But when you personally get to know a person कि हाँ कोई आवाज देता है. As children,
एज अ चाइल्ड आई नेवर थॉट कि इसके पीछे किसी इंसान की आवाज है. फॉर मी इट यूज्ड टू बी लाइक हाँ कार्टून ही बात कर रहा है. So like हाँ, that voice, yeah. So आज we भी have linked that voice to a cartoon. यस, और आज भी आई टेल यू अ लॉट ऑफ पीपल टुडे आल्सो डू नॉट नो. जैसे फोन पे अनाउंसमेंट्स होती हैं तो उनको लगता है Hmm. कि अरे ये तो कंप्यूटर जनरेटेड होगी, यू नो, दे डोंट नो True, true. गर्ल पर्सन इज स्पीकिंग. उनको नहीं Yeah. पता होता है कि माइक के पीछे भी कोई होगा जो बोल रहा होगा. हाँ. अनाउंसमेंट्स एंड कार्टून स्पेशली, आई डोंट नो लोगों को अब पता है कि नहीं, बट क्या थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है. Yeah. Unaware है लोग. So like, can you tell us something about the audition process that they have for voice acting and the whole process of recording? ओके, सो आई विश हम कभी कोई लाइव सेशन करें जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लाइव, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया. पर अब लॉकडाउन है, सब लोग अपने अपने घरों में से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी Yeah. नॉर्मली क्या होता है, देयर अ स्टूडियो, वहाँ पर एक डायरेक्टर होते हैं, फिर एक साउंड इंजीनियर होते हैं, फिर आप माइक के पीछे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, और इट्स अ बिग सेटअप. पर ऑडिशंस के लिए बेसिकली आजकल तो मुझे पता है, पहले क्या होता था कि पहले एक दूसरे के माध्यम से, जैसे मैंने बोला कि अच्छा आपको ऐसी वॉइस चाहिए, मैं उनको जानती हूँ, आप उन्हें बुला सकते हैं, यू नो, सो ऐसे हाँ. होता. बट आजकल क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, तो आजकल मैं हालांकि ऐसे किसी ग्रुप पर हूँ नहीं, पर आजकल जैसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनका नाम ही होता है वॉइस ऑडिशन या टीवी ऑडिशन. Yeah. तो उसमें जितने भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं जो ऐसी वॉइसेस ढूंढ रहे हैं, वो अपना रिक्वायरमेंट डालते हैं, या लोग कहते हैं कि भाई मैं फला जगह ऑडिशन दे के आया, तो यू कैन ऑल्सो गो एंड ट्राई योर लक, यू नो. सो ऐसे बहुत सारे हैं, तो वन शुड एक्चुअली कीप एन आई आउट फॉर सच ग्रुप्स, और उसमें ज्वाइन कीजिए. एंड इफ यू आर टैलेंटेड, और अगर आपकी आवाज़ में वो दम है, तो फिर ऑब्वियसली देन देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर यू. So our audience is like they are waiting to hear your voice यस, in the different cartoon character. So if I give you a situation, या will you enact it out? ठीक है, ढंग की Suppose, ना, तुम ढंग की. हाँ हाँ. हाँ हाँ, suppose शिनचैन और नोबिता की मॉम है, हम्म, and these are not now Japanese moms. These are typical Indian moms. करेक्ट. They have met at a supermarket हाँ, and now उनको अपने बच्चों की बुराई नहीं कह सकते, but still they have to talk about them कि मेरा बच्चा ऐसा करता है, तेरा बच्चा वैसा करता है. So like how will they speak? so Nobita's and Shinchan's mom. हाँ, शिट. सो नोबिता's mom is एक्चुअली दोनों माएँ बहुत सताई हुई हैं. सो मित्सी Yeah, एंड मिसेस नोहारा. सो yeah. बेसिकली दोनों मिलती हैं. सो मिसेस नोहारा विल बी लाइक, अरे मुझे डोरा केक्स बनाने थे, मुझे सामान ही नहीं मिल रहा है, आज तो नोबिता ने मेरी नाक में दम कर रखा है. अरे मित्सी आप यहाँ, शिनचान दिखाई नहीं दे रहा. तो मित्सी बोलेगी, अरे मिसेस नोहारा आप तो बात मत कीजिए, शिनचान की नाक में दम कर रखा है उस लड़के ने, पता नहीं अभी मेरे साथ आया था, कोई लड़की दिख गई, उसके पीछे पीछे चला गया, अब मैं क्या करूं. वैसे आपसे ना मुलाकात कम हो पाती है, आप मेरी किटी पार्टी ज्वाइन कीजिए ना. My God, this is so lovely. Like I really have a doubt. कैसे होता है? Like एक ही आवाज में इतने सारे variations लेके आना. तो Like as far as I know, आप डोरेमोन में भी 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल करते हो. बल्कि Like छह it. और ज्यादा हो जाते थे, क्योंकि क्या होता है, डोरेमोन मूवीज जैसे आती है ना, तो हाँ. मूवीज में क्या होता है, वो हमेशा नए नए कैरेक्टर्स ऐड कर देते थे. जैसे हम एलियन वर्ल्ड में चले गए, तो वहाँ एलियंस हैं, उनके बच्चे हैं, तो मेरे डायरेक्टर क्या करते थे, वो कहते थे कि पल्लवी ये जो आप रेगुलर कैरेक्टर्स कर रही हैं वो तो कीजिए, ये नया कैरेक्टर है ये भी कर दीजिए, वो उसकी माँ. सो यू नो दे यूज्ड टू लाइक, मैं ऐसी उनकी वो है ट्रम्प कार्ड थी, वो मुझे हर जगह फिट कर देते थे. दे यूज्ड टू से क्या रही ये भी. सो आई यूज्ड टू रियली एंजॉय इट, तो मुझे तो मजे आते थे. तो या इट्स फन. तो आप ऐसे कर कैसे लेते हो? Like how do you start preparing different voices? अच्छा, तो बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट दे लुक फॉर इज कि आपका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में ओरिजिनल, हाँ. तो व्हाट्स द डायरेक्टर्स लुक फॉर, व्हाट द चैनल इज लुकिंग फॉर, कि जो ओरिजिनल वॉइस है उसके कितने नजदीक हमारी इंडियन वॉइस हो सकती है, यू नो.
तो अगर जैसे जियान की मॉम है, जियान की मॉम शुरू से उनका जो आवाज है वो बहुत भारी रहा। ओरिजिनल भी जो कार्टून है क्या? उसमें भी जियान की मॉम बहुत भारी बोलती है, वो ऐसे बोलती है, I'll tell you how. अरे जियान, तुम यहीं खड़े हुए हो, मैंने तुमसे कहा था दुकान पे रहो, दुकान का ख्याल रखो, अब तुम यहाँ खड़े हुए खेल रहे हो, मैं तुम्हें अगली बार छोड़ूंगी नहीं, फौरन दुकान पे चलो। You know, so this is how she talks. Oh my God. Yeah. So I जो mean, जो ओरिजिनल ऐसे ऐसे बिलीव नहीं होता ना, like in a split second you can change your voice in yeah, a completely different one. that but It's it comes with truly amazing. practice. Thank you so much, darling. Actually, I'll tell you what, a lot of people, I'm amazed कि जैसे डोरेमोन है, शिनचान है, मैं एक और कैरेक्टर कर, एक और कार्टून सीरीज करती थी कोचिकामी, फिर फीफी एक करके Okay. एक था फीफी, फिर था आर्थर, ऐसे बहुत सारे, ड्रैगन ट्रेन, और पता नहीं कितने कितने हमने कार्टून्स किए। तो बच्चे इतने वो इतना ज्यादा जल्दी सीखते हैं छोटे बच्चे। Yeah. तो मैं आई नो पर्सनली नो 5-6 ऑफ देम जो ऑटोमेटिकली सुन सुन के शिनचान की आवाज हूबहू निकाल देते हैं, डोरेमोन की, नोबिता की आवाज हूबहू, बिकॉज वो इतने अच्छे कॉपी कैट्स होते हैं ना छोटे बच्चे। तो Yeah. इट्स नॉट अ बिग डील, आपको बस अच्छा लिसनर होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड लिसनर, प्लस वो फोकस होना चाहिए, एनीबॉडी कैन डू इट, इट्स वेरी सिंपल, मैं तो यही बोलती हूँ। So what are you currently doing right now in these COVID times? अच्छा, सो So आई, ऐसे घर से काम हो रहा है क्या? हाँ हाँ, घर से ही काम हो रहा है, मैं तो बाहर निकल नहीं रही हूँ डर के मारे, एंड घर में कोई आ नहीं रहा है, और अगर कोई आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड एवरीथिंग। सो घर से आई एम लकी, बहुत सारा काम है, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ ऑडिबल बुक्स जो है, स्टोरी टेल, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टोरी टेल। Yeah. Currently I started doing a show with Nilesh Misra on mic. So, and it's a beautiful experience क्योंकि I love telling stories. I love stories. ऐसा क्योंकि हम सब ना, मेरा मानना है कि हम सब अच्छी बुरी छोटी छोटी कहानियों से ही बने, लाइक यू हैव अ बैक स्टोरी, और आज Yeah. हम बात कर रहे हैं, हम इसकी भी एक कहानी बनाएंगे। सो उन कहानियों को सब तक पहुंचाना इज ब्यूटिफुल, मुझे बहुत मजा आता है। सो राइट नाउ आई एम डूइंग माइक से के साथ वो शो, देन आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ ऑडिबल्स, एंड देन आई एम डूइंग नेटफ्लिक्स की एक सीरीज डब कर रही थी मैं, देन आई कीप डूइंग दीज कार्टून्स, तो या अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, अ लॉट ऑफ। Wow, that's lovely. So what reactions do you get from people when you tell them that you are the voice behind Nobita's mom? Okay, so you know what? Initially, a lot of people knew already that I'm doing, because there were initially there was a lot of promotion, कि हम लोग हिंदी में, Yeah. क्योंकि डोरेमोन हम लोगों ने, we started डोरेमोन, obviously we started शिन, Yes. तो बहुत प्रमोशन था उन दिनों, यूटीवी डब किया करता था, फिर लेटर हंगामा टुक ओवर एंड देन डिज्नी टुक ओवर। सो लोगों को पता होता था कि शी इज डूइंग इट। तो जितनी आंटियां होती थी, जितने पेरेंट्स होते थे मेरे पास आते थे, मुझे बोलते थे कि आपका बच्चा शिनचान तो बहुत बदतमीज है, वो तो बहुत बहुत बुरी बुरी चीजें करता, हमारे बच्चे सीख जाते हैं, और डोरेमोन के लिए कहते थे डोरेमोन अच्छा है आपका जो बच्चा है, नोबिता बहुत चालाक है, आपको पता है नोबिता होमवर्क नहीं करता। तो वो मुझसे इस तरह बातें करते थे जैसे मैं Yeah. एक्चुअली उनकी माँ हूँ। सो बहुत Like अच्छा। ये सुन के ना, like we can imagine that cartoon as a person, a real life person. इतनी बार we have been watching it since childhood, so we relate it to a real life person. It's या really lovely. Yeah. Still, I mean still अभी भी कभी भी ऐसा बैड मूड हो, खराब दिन चल रहा हो, या फिर रात को सोने से पहले I do watch डोरेमोन या फिर शिनचैन. Yeah, यू I डू दैट। still love that. Yeah, those are absolutely lovely. I mean, I also love the movies. डोरेमोन के बहुत सारी movies है, those भूल भुलैया and stuff. I love that. a lot of them, बाप रे। तो हम लोग जब मूवीज वगैरह करते थे ज्यादा टाइम लगता था, और चूंकि सबसे पहले जो डोरेमोन था, सबसे पहले सोनाली थी डोरेमोन शुरू से, पर जो सबसे पहले नोबिता था वो था आकाश आहूजा, और सबसे पहले शिनचैन जो था वो भी था आकाश आहूजा। तो वो लड़का छोटा सा आता था स्टूडियो में, आई हाँ. रिमेम्बर, छोटा सा वो आता था,
और वो मैं मतलब आई वाज सो फास्ट, क्योंकि मैं भी बचपन से मैंने शुरू किया, तो मैं उसको देखती थी तो मुझे उसमें अपना बचपन दिखता था। तो वो लड़का इतनी अच्छी तरह से डिलीवर करके, इतने उसके जितने भी शिनचान के हाव भाव झटके वटके हैं वो सब उसके ही दिए हुए हैं, ही क्रिएटेड इट। बाद Yeah. में बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने वॉइस की, बट ओरिजिनल शिनचान एंड ओरिजिनल डोरेमोन एंड दीज पीपल ये हमेशा से फेवरेट रहेंगे। बहुत मेहनत करते थे और बहुत बहुत टाइम लगता है डबिंग में। लोग सोचते हैं Yes. कि अरे क्या करना है, माइक के आगे आके बोलना है, नहीं, बहुत टाइम लगता True. True. है। So, like you have to give different takes for the recording. हाँ, अब क्या होता है ना, डबिंग में क्या होता है कि देयर इज अ लेंथ। आपको जापानीज में या किसी और लैंग्वेज में उसने कुछ बोला है, ABCDEF हाँ. GH सो अब आपको क्या करना होता है कि आपको वो लेंथ मैच करना होता है। यू हैव टू मैच दैट लेंथ, एंड Yeah. उसमें अगर वो बीच में बड़ा सा मुंह खोल रहा है या फिर वो ऐसे हाथ के जेस्चर्स कर रहा है, तो यू हैव टू मैच ऑल दैट। तो एक टेक्स नहीं, कई बार 3-3, 4-4, 5-5 टेक्स, ज्यादा टेक्स लग जाते हैं टू मैच दैट लेंथ एंड द एक्सप्रेशन। So yeah, So आप act करते 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 हो क्या voice recording? हाँ, जैसे मैं तो आई यूज टू लाइक वॉच कि वो कैसे कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली मेरे लिए थोड़ा आसान इसलिए होता था क्योंकि मेरी जो दोनों माएँ थी वो दोनों हमेशा चिल्लाती रहती थी, हमेशा गुस्से में। और जियान की मॉम, वो भी हमेशा गुस्से में रहती थी। एक मॉम जो मैं करती थी वो थी शिजुका की मॉम। वो शिजुका की मॉम बहुत प्यार से, जैसे वो हमेशा, उनका ज्यादातर सीन होता था कि वो फोन उठाती हैं और वो बोलती हैं, हेलो कौन बेटा, अच्छा नोबिता, हाँ बेटा शिजुका तो अपनी पियानो क्लास के लिए गई है, हाँ हाँ बेटा मैं बता दूंगी, दैट शी इज टू बी वेरी सॉफ्ट। अब ऑन द अदर हैंड ये और बाकी माएँ गुस्से में रहती थी, तो मेरे लिए सेट एक्सप्रेशन होता था कि अच्छा ये सीन में भी गुस्सा ही कर रही होगी, So yeah, that. So I had one thing in my mind, एक enact करने के लिए, but you have started with Shizuka's mom, so let's continue with it. Okay. If Shizuka got 0 marks in one of her tests, what will her mom say? वो शिजुका वो की, रोती हुई आई है, हाँ, वो रोती हुई आई है. Her mom is angry for the first time. वो yes, कभी angry होती ही नहीं है. She's a very calm person, such a yes. lovely person. Still पहली बार वो उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है. What will she say? So she will be very nice. She will say, अरे नहीं नहीं शिजुका बेटा, ऐसे रोते नहीं है, क्या हुआ अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, अगली बार और मेहनत करना। और बेटा एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगी कि नोबिता के साथ खेलना वेलना थोड़ा बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। Okay, now listening to all these voices, I have a doubt in my mind. How do you remember these voices yourself? Like कौन सा आवाज कैसे निकालना है? बहुत बिकॉज यू डूइंग इट बार 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 तो याद हो जाता है। प्लस आपको वो ओरिजिनल ट्रैक, जो ओरिजिनल साउंड है वो भी कान में मिलता रहता है, यू वेयरिंग हेडफोन्स एंड एवरीथिंग, हाँ. तो वो मिलता रहता है। और दूसरा, देन देयर आर डायरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी टू हेल्प यू, तो जस्ट इन केस आप भूल गए तो वो तो है ही याद दिलाने के लिए। प्लस एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी बात यही होती है कि उनको सिर्फ बोलना नहीं है, यू हैव टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब क्या होता है ना, कई बार जो स्क्रिप्ट लिखी हुई आती है उसमें लाइंस छोटी होती हैं या लाइंस बड़ी होती हैं, तो एज एन आर्टिस्ट ये आपका भी कर्तव्य है और ये आपके जॉब में इंक्लूडेड है कि वो आप लाइंस खुद से बनाए। तो कई बार क्या होता था, मैं फेमस थी, आज भी फेमस हूँ, कि मैं कभी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं पढ़ती हूँ। मैं आई मेक माई ओन लाइन्स, क्योंकि जब आप नेचुरली कोई लाइन बोलते हैं ना तो वो फिट हो जाती है उसमें। Yeah. इफ द मदर इज सेइंग कि अरे तुम यहाँ खड़े थे, तुम वहां कैसे पहुंच गए, अब उसने लिखा है कि, अगर राइटर ने लिखा है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ देखा था, कहाँ चले गए, पर वो फिट नहीं होगा बिकॉज शी इज मेकिंग दीज शी इज पॉइंटिंग एंड एवरीथिंग। सो उसमें वो अगर आप नेचुरली कुछ बनाते हो ना तो वो ज्यादा अच्छे से फिट हो जाता है। So you have to True, be true. creative in your head while dubbing. Yeah. So now I just saw a question from our audience. Yes, yes. Someone was asking, how do you take care of your voice? Okay, so this is very important. A lot of people say कि भाई अचार मत खाओ, या बहुत ठंडा पानी मत पियो, या बाहर का मत खाओ। तो मैं honestly, I don't know if I should be saying this live, but I don't do all this. मैं सब खाती हूँ, सब पीती हूँ। बस it's just that you have to not over stress your vocal cords. बीच में there was a this thing also कि
एक्चुअली एनिमेशन टेक्स अ लॉट ऑफ मॉड्यूलेशन, और उसमें आप ना अपनी आवाज को ट्वीक करते रहते हो, कभी ऊंचा, जैसे डोरेमी, व्हेन आई Yeah. डू डोरेमी, सो डोरेमी हैज अ वेरी थिन वॉइस, सो डोरेमी विल से, अरे डोरेमोन भैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था कि आप जाके अपना इलाज करवाओ। अगर आप लैब में जाके इलाज नहीं करवाओगे तो फिर आप नोबिता की मदद कैसे करोगे? You know, so she's got this very thin voice. अब जियान्स मॉम ऑन द अदर हैंड, she's got a very heavy voice. तो जब आप ऐसे अपनी आवाज को ऊपर नीचे करते हैं तो कॉर्ड्स पे, आपके वोकल कॉर्ड्स पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। तो फॉर दैट यू हैव टू कीप सिपिंग वार्म वाटर, जैसे मैं अभी ग्रीन टी पी रही हूँ, and you have to keep थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेना पड़ेगा, you know, you have to keep taking breaks in between your recordings. और जब आपको लगे कि आवाज थक रही है तो आप काम करना रोक दें, you know, that's the way to go about it. Yeah. Which is the most challenging voice that you have enacted up till now? अच्छा, so this is a very interesting question. मैंने इस बारे में सोचा नहीं कभी. But I dub a lot of Hollywood films also. So Yeah. I was doing this film called Million Dollar Baby. So इस Yeah. film में जो heroine I was doing this main character. So I was dubbing for her. Film actually English में है, तो मैं हिंदी में डब कर रही थी. तो उसमें अगर आपने फिल्म देखी है तो उसमें ना वो शी इज अ बॉक्सर, सो वो क्या करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा चोट वोट लग जाती है एंड शी इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. तो जब मैं वो डब कर रही थी तो इतना मुझे वो इतना ज़्यादा हिट कर रहा था जब मैं वो लाइंस बोल रही थी कि मैं एक्चुअली रोने लगी. और वाइल डबिंग तो मैं इतना रो रही थी कि मुझे कंट्रोल करने में खुद को आई थिंक करीब 1 घंटा लगा. और फिर मैंने कहा आज ये नहीं हो पाएगा, इसको अगले दिन करते हैं. बिकॉज यू नो समटाइम्स आप सीन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि जितनी बार, तुम यकीन नहीं मानोगी, जितनी बार मैंने वो सीन डब किया मैं उतनी बार दहाड़े मार मार के रोई, बिकॉज इट इज बहुत इमोशनल Yeah. सीन है वो. फिर ऐसे ही मैं कंगना रनावत के लिए डब कर रही थी, उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु. उसको हम लोग इंग्लिश में डब कर रहे थे. तो वो ना Okay. उनका एक बहुत ही अलग स्टाइल है, कभी कभी वो नाक से बोलने लगती हैं अचानक, यू नो. सो उनका डब करने में मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि उनके मैनरिज्म्स, एक तो वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, उनकी हंसी. सो कई बार कैरेक्टर को ना फुल कॉपी करने के लिए टाइम लगता है. सो वो मुझे Yes. काफी चैलेंजिंग लगा. Yeah. So like आप रियाज करते हो क्या? This is what I can see. A question from audience. आप सुबह सुबह रियाज करते हो क्या? नहीं, मैं कोई रियाज नहीं कर मैं रियाज नहीं करती, पर आई डू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड आई रीड अ लॉट. तो एक एक्टर के लिए पढ़ना और दूसरों से सीखना बहुत जरूरी है. तो जितना आप देख के सीखेंगे उतना ज्यादा आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होगी. So you dub in 6 different languages, right? So I record in I'm very fluent in English, Hindi, Punjabi and Urdu. I also do Bangla, Marathi and Air India के लिए मैंने I think 14 या 15 लैंग्वेजेस में उनकी अनाउंसमेंट्स डब की. Right. तो उसके लिए ना एक डिक्शन डायरेक्टर होते हैं, वो साथ रहते हैं. तो वो बोलते हैं, जैसे अब अगर मेरे पास कोई बांग्ला बहुत क्लोज है हिंदी के, तो जैसे जीवन साथी का जो एड आता है वो सारी लैंग्वेजेस में आई हैव डब्ड सम ऑफ द लैंग्वेजेस. सो उसमें क्या होता है कि जैसे मराठी में आहे होता है, तो मुझे नहीं पता मानजा होता है, तो आई डोंट नो हाउ टू से दैट. तो वो डिक्शन डायरेक्टर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई इसको ऐसे बोलिए. सो या दैट. So आपके लिए कौन सी लैंग्वेज इज द मोस्ट इजी डब करने के लिए? पंजाबी मुझे बहुत इजी लगती है, क्योंकि पंजाबी इज वेरी क्लोज टू हिंदी अगेन. पंजाबी एंड आई लाइक डबिंग इन बांग्ला ऑल्सो. बांग्ला इज वेरी स्वीट. और मेरी मम्मा बहुत फ्लुएंट है बांग्ला में, पर वो कहती हैं कि देखो बंगालियों का एक बड़ा ही सुंदर सा मधुर सा स्वर होता है जो तुम्हारे पास नहीं है. तो मैं उनसे कहती हार गई हूँ कि माँ मुझे बांग्ला सिखाओ. वो नहीं सिखाती, वो कहती तुम्हारा बड़ा कर्कश स्वर है, बांग्ला बहुत मीठी भाषा है, तुम नहीं सीख पाओगी. Can you say 1 or 2 lines in Punjabi for the audience, please? पंजाबी अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
तो मैं चांदी हूँ. I don't know if I'm saying it right also, but yeah, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत प्यार करती हूँ. Oh, this is horrible. सो इस लाइन से मुझे याद आया, विच इज द फेवरेट कार्टून कैरेक्टर आपका? सो यू आर सो क्लोजली एसोसिएटेड विद कार्टून्स, आपने बहुत सारे कार्टून्स कैरेक्टर्स को ऐसे, यू हैव पुट लाइफ इनटू सो मेनी कैरेक्टर्स, विच इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? So are you talking about the characters I've given voice to, या फिर ऐसे कौन सा मेरा personal favorite आप दो बता दो, द वन विच यू हैव एनेक्टेड एंड अदर जो आपका पर्सनल फेवरेट है. तो मेरा जो फेवरेट है वो है डेकी सुगी. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने खुद से डब किया है. क्योंकि डेकी सुगी बड़ा सॉर्टेड है लाइफ में, उसको कोई नोबिता का वो बहुत बड़ा दुश्मन है. नोबिता उसको एक आंख पसंद नहीं करता है, और उसका बड़ा स्वैग है, उसका एक पॉइंट ऑफ फोकस है पढ़ाई, और दैट्स इट. तो आई लव प्लेइंग डेकी सुगी. और वैसे मुझे टॉम एंड जेरी बहुत पसंद है. आई लव टॉम एंड जेरी. सो आप बचपन से कौन सा कार्टून कैरेक्टर देखते आ रहे? बचपन से एक्चुअली बहुत सारी. एक्चुअली मैं जब आई यूज्ड टू एक्ट, डीडी वन पे एक शो आता था तरंग. तो तरंग में ना पपेट्स होते थे, तो मैं तरंग की एंकरिंग करती थी टीवी में. तो मुझे पर्सनली इतना टाइम ही नहीं मिलता था ऑनेस्टली कि मैं टीवी देख सकूं, क्योंकि आधा टाइम मैं शूट कर रही होती थी और आधा टाइम स्कूल होता था. तो मैं जब ऑन सेट वो पपेट्स वगैरह को परफॉर्म करते देखती थी, तो मुझे बड़ा मजा आता था वो देखने में. बाकी टॉम एंड जेरी आई थिंक इज माय ऑल टाइम फेवरेट. डू यू हैव टू डू एनीथिंग डिफरेंट जिससे आपकी वॉइस कार्टून कैरेक्टर की जैसी लगे? So maybe for that you have to just listen to the original voice, और आप practice makes perfect. तो अगर आपको कोई particular voice है कि मुझे ऐसी voice करनी है, तो you try and copy the voice. कई बार नहीं भी हो पाएगा. So but the more you practice, the more you'll get there. Yes. वो वाली बात है. So nothing special as such. पर जो भी चीज गले पर जोर डाले वो नहीं करनी चाहिए. Then you're abusing your vocal cords, which is unhealthy. I will not recommend it to anybody. And also while copying and mimicking also, अगर आपको कहीं भी लगे that your vocal cords are getting strained, you should stop right there, because this is not cool. So we have a question from the audience. It goes like, acting में acting direction या script, इसमें से which is the most important part, do you think? Okay, so this I think every part, every role is equally important. अगर मेरे सर पे डायरेक्टर ना हो तो मैं नहीं कर पाऊंगी. Sometimes you need somebody to guide you. ऐसे ही अगर राइटर ना हो तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे I think everybody is equally important. हमारे शूट्स में क्या होता है कि हमारे जो स्पॉट दादा होते हैं जो हमें चाय पिलाते हैं, हमारे जो मेकअप दादा होते हैं जो हमारा मेकअप करते हैं, एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट. अब मेरा जो सीरियल में लुक होता है, उसमें अगर मेरे बाल अच्छे नहीं बने हो तो आप लोगों को मैं अच्छी नहीं लगूंगी स्क्रीन पे. सो आई थिंक एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, एवरी सिंगल वन ऑफ देम. So I can see one word popping up again and again in these comment sections. Maybe Jian has got his voice from his mom. Mom जैसा उसका आवाज साउंड करता है. So Jian sings, right? उसका एक ही गाना होता है. How will his mom sing the same song? मैं हूँ जियान की मम्मी, मैं हूँ बहुत ताकतवर, जियान को मैं बहुत पीटती हूँ क्योंकि वो है बहुत नालायक. I mean, my God, how do you change your voice in a split second? I still cannot even imagine that. तो It's लॉकडाउन happening in front of me. after this whole corona thing calms down a little, you and I will meet over a coffee and then I'll teach you. Yeah, sure. I love to do that. Yeah. So, itne sare, everyone is so interested in this conversation. I can see so many questions popping up. Me too. Hi, Addition 62. Neha. Hi, Neha. Sakshi.
Swami Ram. Oh, so cute. So many people have joined. It's really so lovely, Vesh, and cute. So cute. Yeah. So, is there any other cartoon character that you would like to dub for? कार्टून कैरेक्टर लाइक आई टोल्ड यू ना डार्लिंग आजकल इतना टाइम नहीं मिलता है टीवी देखने का बट आई थिंक कौन कौन से शोज है आजकल कार्टून फेमस को आई थिंक मेरे हम जो 2 सीरीज करते हैं वो बहुत फेमस है शिनचैन एंड डोरेमोन या इसके अलावा और कौन से आजकल तो मैं ज्यादा नहीं देखती. आई नो दीज. क्या छोटा भीम होता है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस होता है. आई नो दीज. इन्हें बस ये पता है अभी. अच्छा मैं आजकल एक वो कर रही हूँ एक और एनिमेशन सीरीज के लिए डब कर रही हूँ उसका नाम मैं भूल रही हूँ उसमें एक बिल्ली है और आई कंप्लीटली फॉरगॉटन द नेम ऑफ इट याद आएगा तो मैं बताऊंगी आई एम डबिंग फॉर दैट तो उसमें जो बिल्ली का कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना वो बहुत ही खुराफाती है एंड अगर मुझे मौका मिला तो आई वुड लव टू डब फॉर दैट कैरेक्टर और मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है next time I'll remember it next time and I'll tell you. So can you do you try enacting different voices अलग अलग लोगों के? Do I try? So आप yeah try ऐसे ही. Do I try enacting different voices? I try जैसे मैं ना मुझे बड़ा मजा आता है राखी जी है हमारी राखी गुलजार जी उनकी आवाज में मुझे मिमिक करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो कहती है ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे धरती का सीट फाड़ के आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे यू नो आई लव दैट और ऐसे ही जैसे हेमा जी की वॉइस और मैं केंट के लिए हेमा जी को डब कर भी चुकी हूँ मेरा सौभाग्य है मैं माधुरी दीक्षित जी को डब कर चुकी हूँ उनका एक डाबर का एक एड है सो यू नो ऐसे वॉइसेस करने में बड़ा मजा आता है यू नो कि आप किसी और को किसी और के मैनरिज्म्स कॉपी करके उनको डब कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग तो आई वुड लव टू कीप डूइंग दिस हाँ जब तक हो पाएगा मैम वुड यू लाइक टू ट्राई शाहरुख खान जी की आवाज? यहाँ कमेंट सेक्शन में एवरीवन इज आस्किंग फॉर शाहरुख खान जी की आवाज क्योंकि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में देयर इज वन कैरेक्टर आई गेस इट्स ऑगी ही स्पीक्स विद द सेम मैनरिज्म एज SRK सर. अच्छा तो ये लोग कितने बदमाश हैं जो मुझे कह रहे हैं कि मैं शाहरुख खान निकालूं कैसे करूं बताओ क्या मैं तो आई डोंट नो हाउ ही टॉक्स आल्सो बहुत हकलाते हैं वो ना समटाइम्स किरण मैं तो हाउ डू यू डू दिस दैट्स इट ढंग के रिक्वेस्ट करो सब So okay, so moving over to the last question. yes Audience के questions तो अभी खत्म नहीं होने वाले. I don't think they will end this. Okay, so here is the last question. What message will you like to give to the audience जिन्हें voice acting में future करना चाहते हो? Okay, so this is really very good question, I must say. So actually, I keep मैं ना अपने I try कि मैं अपने Instagram पे सारे जो मुझे private message करते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका जवाब दे पाऊँ थोड़ा सा वक्त की कमी रहती है but I try. So they keep asking me this same question कि मैम I want to try कैसे करें? So I would tell everybody to practice. पहले you know you should जैसे आजकल सबके फोन्स में रिकॉर्डर्स हैं वॉइस रिकॉर्डर्स तो Yeah. आप उस पर रिकॉर्ड करें रोज पढ़ने की आदत डालें जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल है इफ यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश रीड इन इंग्लिश इफ यू कंफर्टेबल इन योर ओन मदर टंग आप उसमें पढ़ें हिंदी पढ़ें तो क्या होता है ना कि आपका जो भाषा है जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होता जाता है जितना आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा और एक वॉइस एक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि देखो एनिमेशन डब करते हुए स्पेशली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज गुड वर्ड्स सही भाषा बोलें अच्छे शब्द बोलें क्योंकि आपका ऑडियंस जो टारगेट ग्रुप है जो आपको देख रहा है वो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उन्हीं से सीखते हैं यू नो जैसे मैंने पहले बोला बहुत सारे शिनचान की हूबहू नकल करते हैं सो दे लर्न फ्रॉम दैट तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब आपको लोग सुन रहे हैं तो वो अच्छी भाषा सीखें यू नो
आजकल भाषा के बहुत, जैसे मैं मेरे घर गया क्या होता है, मैं अपने घर गया ना, तो ऐसे हाँ भाषा बच्चे टीवी से सीखते हैं मोस्टली। तो सही भाषा बोले, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपके शब्दों का जो उच्चारण है वो सही हो, तो इसके लिए आपको खुद बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ़ोन लेके उसमें रिकॉर्ड करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आप शब्दों को पढ़ें कि वो ज़्यादा सुनने में अच्छा लगे, उसे अपने साथियों को सुनाएं। अगर वो कुछ कमी बताएं तो अगली बार आप बेहतर करने की कोशिश करें, और खूब सारा अच्छा कंटेंट देखें। बहुत सारा अच्छा कंटेंट अवेलेबल yeah. है, आप उसे सुने, कहानियां सुने, और धीरे धीरे ट्राई एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। आपको ना पहली दफा जब आप कुछ रिकॉर्ड करेंगे और जब आप 5वीं दफा कुछ रिकॉर्ड करेंगे, आप वो दोनों को सुनेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। सो दिस इज हाउ यू Hmm. लर्न। आई टोल्ड यू कि ऐसे ग्रुप्स में जुड़े जहाँ पे ऑडिशंस के कॉल्स वगैरह नोटिफाई करते हैं लोग। और या, ऑल द बेस्ट। मैम बस एक लाइन लास्ट डोरेमी की वॉइस में इन मराठी प्लीज, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ मराठी ऑडियंस हियर। डू यू नो मराठी? डू यू नो मराठी? हाँ हाँ, तो you tell me how to say it. I'll say it in Doremi's voice because my grammar will go haywire. Give me an easy line, okay? ओके, आप बोल दो, हिंदी में लाइन बोल दो, आई विल ट्रांसलेट इट टू मराठी। Okay, so let's say, हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे डोरा केक खा लिए डोरेमोन? हा मग काय झालं जर मी तुझे डोरा केक्स खाऊन What? टाकले No. डोरेमोन? ओके 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 Too ओके difficult. I will come and या punish you. So ओके ओके ओके, अ what सिंपल happened? लाइन। Say what happened Doraemon. इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? काय झालं डोरेमोन? काय झालं डोरेमोन? This is really cute. I mean, you should try speaking Marathi more. It really sounds sweet. Ah, so It's sweet. very sweet. Thank you. I will learn. Yeah. I'm not feeling like ending this session, but we are towards the end of the time. Yeah, I know. So, yeah, I'll have to. It was such a lovely Thank conversation. you. We were very glad to hear your experiences. Thank you so much for being here. Thank you so Thank much you. for having me. I love everybody who's joined, and all the best. Stay safe, everybody. Mask pehniye, social distancing follow kijiye, and just be happy. Keep smiling. Thank Yes. you so much, darling. Thank you, Love ma'am. your Thank you. impressions. Bye, ma'am. Bye. Take care. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye.